approach, but it's a good approach. Rabindra, he's asking that the cost is very, very important so that we are using for more accuracy than triangular. This is also a little bit good approach, but I will refine your answer. The problem is here in the question. The question is stating that you are a project manager on a construction project. 85 of the project work were completed. That's mean you are in critical situation, and you are almost to complete 100% this work and project almost finished. And a project has spent a budget due to the change in cost, and now in 85% you have spent it all the budget for the project. Now you have to defend. Now you have to defend. But why you spend all of the budget? You need to defend here for your client, for your customer. So when you are going to defend it, or when you are taking the more accuracy or more complex project for complexity of cost, then you will see you cannot say that I am using the bottom up estimation. No, you can say that I was using, this is the cost, this was this. That's why this is indication for that you are near to complete the project and you have spent it all the. So you have most risk in this question, most risk. So due to most risk, that's why you will use the beta distribution. If there is most risk. If you don't have any risk, then you can use the 3-point estimation triangular. Otherwise, you will use beta distribution. Or sometimes there is a word using in the exam. They are using in the exam weighted average. Weighted average. That's the same weighted also. Average, weighted Yes. is 3 point. Weighted average is 3 point. No, weighted average is the beta distribution, which is divided by 6. Weighted average, that's mean beta distribution, 3-point beta distribution. And if there is word weighted average, that's mean you will use divided by 6 formula. And only simple triangular, then you can use the 3-point estimation. Simple 3-point estimation. Suppose I am the project manager, so I would save myself. So why should I give to the organization the lump sum? Because I'm not sure, because 85% I use the cost, and then I realized. No, 85% you did not use the cost. 85% project already finished. Project work finished, and you spent 100% money. You spent 100% money. And then I realize budget is going to increase rest of the project. 15% remaining. How can I give the calculation accurate to management? Yeah, that's why the question is stating if the cost of the material was US 7.0 and your estimate was, that's why explain the question itself explained already. That's why, because the prices of the material was high due to some problems, some reasons, That's why they because the budget changed the cost of material due to change the cost of material. That's why you will defend it, and your point should be strong with a beta distribution. A 3-point estimation, client can say that beta distribution you are not using the accurate cost estimates. You should use the beta distribution. Then you can ask us the more increase or increasing in the cost. That's why you should give them a beta distribution. Beta distribution is more accurate than triangular. From the triangular side, you cannot defend yourself in the project. But until the question asked or stated that you will use the average, average or weighted average. Average and weighted average is different between them. If a question is asking average only, that means you will use the triangular. If question is asking that weighted average, that means you will use the beta distribution. This is the difference only. Coming to the second question, a project manager is using method that not considered risk to perform schedule network analysis. Which type of duration estimate is being the project
manager used a critical path method, Monte Carlo, beta distribution triangle. Yes, here. Who answered that? Sarjan is not I here today. answered A. Longest path. Huh? Answer A. A. You mean critical path method? Okay. Yeah. And what about Rakesh? He Rakesh answered A. B. Answer I think B, A. Ah, A. A. Satya A. Me also A, sir. And anybody else answered it? Yes, sir. Why? Who will defend? Satya, can you defend it? Why you answered A? But as per our lecture, it's a longest period. Longest period should be risk free. That's why I thought that it What should is be question critical path. asking? What is Method. question is asking? Tell me the question. A project manager is to using a method that not consider risks to perform schedule network analysis. Which type of Okay. duration estimates is being the project manager used? So as critical path method is the longest period and it should be risk free. That's why I thought Did question ask you? Did question ask you to perform a network diagram? And is there any clue in the question that he is asking you calculate the project duration? only that not consider risks to perform. The As per question this is sentence, I asking. The thought that question is asking that perform schedule network analysis. That's mean network analysis already done. Oh, sorry, network is already done, and you have calculated. You have calculated the values, and now he's that question is asking which type of duration is being. That's mean already done. Network is already done. That's mean which type of duration, activity duration, which type of activity estimate duration are you using? The question is asking. He is not asking to produce length of the project and duration of the project. No. Project manager is using a method that not consider risk to perform schedule network analysis. That's mean network is already done, but there is no risk. You can analyze now. You have something with you right now. So A question is completely wrong. A answer is completely wrong. You cannot go for A. Come to the next point. Who will answer? You have three options right now with you. I'm not able to recognize the Monte Carlo. Or Okay, eliminate it. You can if you cannot answer. Okay, eliminate it. Then check another one. Is there any clue for you? just where is just where is the question? Your question in the screen? The question is not in the screen, but if you need, I can show you. Yeah. Let me show you the question. Let me show you the question. Here is your group, and Okay, I got it. you got it on your WhatsApp. Yes. Yeah. Anybody else? Rakesh, Yusuf. Yusuf is on vacation. We cannot disturb anymore. He can just listen it, and later on he can Yeah, this review. is which type Sarjan, of duration will bring. Sarjan, did you answer that question? Sarjan, आपने आंसर किया था ना इस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को? Risk free. Sir, I Sir, am not able to wrong recall निकला. the Monte Carlo. What is Monte Carlo, sir? So beta is I eliminate the beta. Okay, you Okay, can risk eliminate the free. beta. Risk free. No, risk free means beta distribution method not consider risk to perform.
That means beta. No. Triangular. I'll consider. There is some chances to risk. So beta is for me is the correct answer. I am not able to recognize the Monte Carlo. What is Monte Carlo? Can you explain, sir? Yeah, Monte Carlo is the analysis. Monte Carlo technique is used for that purpose. If you are going to analyze before you are applying, you have a software, you have a something, some technological advancement method to use them and see what will be the consequences for that. You can use before the actual you are applying on the project, you can use on the software and produce output. What will be the Okay. consequences? Okay. Then here is telling that schedule is. I mean, schedule is going to perform. Okay. So then B is also right answer. B also, huh? Yeah. So B you B B the risk free. Not consider risk to perform. I think not. I think B is a correct answer then. B is correct. From Ravindra is B. Rakesh, do you have anything? Actually, they're a little bit confused here in the Mm. question. Uh, Here asking which type of duration estimates is being the project manager used. Okay. So here Monte Carlo is the one type of the simulation, na, sir. Yes, you are right. So here means risk factor already considered in this simulation because before going to Yes, execute, we yes, have the all the means things yes, yes, checks yes, and everything. yes. So Okay. actually, I confused here. We need to select which have means included risk factor or without risk. We have to if we Without, have to choose without, one, without, without, without. Its then question regular, is sir. straight. Question is directly stating that method that not consider risk. Then sir, Question is, Beta regular, B, hmm, regular. yes. beta distribution is a correct in Okay, this from case. your side, Rabindra, give me one one answer. One answer. You are going Sir, for from B my and side, C. Give Okay, me from one my B. side, B. I mind a make up a B. Okay, make up your mind for B. Okay, and Rakesh is giving me triangular, right? Rakesh. yes, Okay. regular. Can you, Satya? You want to change it your answer from A to anyone else? B, yes, beta distribution. Beta distribution is the accuracy. So for better accuracy, it should be risk free. So C. I'll change from A to C. C. ओके सी सार्जन आप आपने आपने आंसर क्या दिया था पहले पहले क्रिटिकल पर दिया था लेकिन सर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लगा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ओके सो I'll go with Rakesh. Why? Because Rakesh approach is very good. He's telling that because he's telling that there is no risk in the question. If there is no risk, then you can use triangular, simple average. If you are saying that in first question, what we were discussing that you have a more risk in that activity, you have a more risk in that case. So you have to see if there is more risk and there is more critical situation, then you will use a beta distribution. If you don't have any risk, then you can just provide with triangular. It's the average value. So that's what is the right answer. Triangular. I think it's enough discussion to memorize or to be considered a good way for exam point of view. The third question is your project sponsor has requested a cost estimate for the project on which you are working. This project is similar in scope to project which work is last year. She would be get a cost estimate as soon as possible. Accuracy is not her primary concern. Which tool and technique will use the estimate? Yes, this one is a very good question. D. D, huh? Yes. D. My side D. also D.
Satya D, and Rabindra D, Sarjan D, and Rakesh. Yes, D, sir. I also mentioned D. Okay. I need one opinion from your guys. Who will explain? Satya, why you choose D? Accuracy is not here the primary concern. Oh, very good. So I thought it should This is tell the us. last opinion. Yes, this is the approach. Very good. Appreciate. So I think all of you are thinking same, right? Here is clearly told they will take as a reference, similar reference of the last project. Yes, Then you are right. similar reference from the last project. That means that we are talking about the analogs. Yes, That means analog. there is a similar means we are lump sum. We are everything is talking about lump sum. Similar. Okay. Okay. Bottom Okay. of this is from bottom to top. This is eliminated. Parametric also there is considering the small accuracy and consider one big project. Okay. This is also cancelled. 3-point estimation. This is a more accurate than analogs. Okay. Okay. Now we'll go to further question. Refer to the table at right. What float a slack of the critical path? Anybody has confusion about this question? See, you were talking about the float. Only float. Calculate this. I put float. So I put the 0. Okay. Okay. So anyone has any confusion about this question? I also thought the same way, sir. Okay. Float, it should be 0. That's why I put 0. Okay. Great. B. Rakesh. Yeah, same answer, sir. B. Sarjan. G, sir, 0. Okay. Next question. If an optimistic estimate for an activity for 5 days, most likely 8 days, pessimistic estimated 10 days, what is the estimate activity duration by part? Irrespected has respected part by part means accepted 3 points. So 7.67 I answered B. Part mean he is telling you what you will calculate by which formula? 3 point. Sir, Only actually 3 point, huh? Sir, Yeah, may I say something, sir? Yes, Satya. So may I say? Sir, we have two options. As per beta, it should be 7.833. As per 3 point, it should be 7.67. Okay. So what you will choose from the question side? I choose question side. I choose second option, 7.67. 3 point. Okay. Estimation. Ravindra also. Rakesh, what? Rakesh. Sir, I choose an A, sir. Actually, beta. A. Okay. Sarjan. 7.833. 7.833. Okay, great. So Rabindra and Satya, you need to consider it one time more. He's asking direct part estimation. If there is written in the exam part triangular or part average, then you will consider it 3 point estimation technique, average. Otherwise, if he is asking direct only part, then you will use the same beta distribution. That's part mean programmable review, programmable evaluation and review technique. Yeah, that I was not clear for that. Yes. That's why now I clear. Okay. Part estimation is same beta distribution. If the exam in the exam it's written part 3 point estimation or part average estimation, then you will use the 3 point estimation technique, triangular estimation. Otherwise, part is asking beta distribution directly. The next is the project manager using weighted average duration estimate to perform schedule network analysis. Which type of mathematically analysis being used? Very
Very easy answer. Who will answer? Who will? Critical path, mathematically critical path method. Anybody Critical else? path method. Myself. Huh? Myself also critical. Myself also Critical. critical path method. A. Sarjan, Beta distribution. Rakesh. Second, sir. I think I already replied for C. 1 second, sir. Let me check. No problem. Take your time. Yeah, I already replied for C here, sir. Actually. 1 C. second. You mean C means Monte Carlo. Yeah. A project manager is using weighted. Actually, sir, I a little bit confused here due to weighted. And now it is clear. Yes, yes. You can give me the right answer. No problem. You can change it. That's why I'm asking you, Okay. because lot of Okay. discussion right now we have finished. Lot of discussion. Okay, sir. 1 second. Let me check question first. I Project think manager is we using answered weighted. almost 4 to 5 questions right now, and we discussed many Yes. things. I give you the clues also. Schedule network means critical path method as per me. Okay. Okay. Sir, here, sir, here then beta. Beta. Yes. Beta distribution. Why you are saying beta? Because sir, here mentioned weighted average duration estimation. Yes, 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 yes. Very good. Sarjan, what do you think? Is it good? Same. Yes, sir. Yes. Average distribution. Average. Oh, sorry. Weighted average means we discussed Ravindra and Satya. We discussed before 5 minutes. We discussed if in the exam written, Yeah, if written weighted average, that's mean yeah. which method? Beta distribution. Yes. Single average, only average, 3 point, triangular. Otherwise, weighted. Here is only one answer you can that you can choose it. What about the another question which I gave you for activities? Start and who did this activity? This one I am showing on the screen. I think who shared me with Satya? Yes, sir. Yes, Okay. sir. What you did? The same activity which we are talking about. Start and A and That, B. that activity. Yeah. Okay. So how is it? Is it right? Anybody solved this question? I Other solved. For me is 24. I don't know this is correct or not correct. One you two time I solved. One time I got 27 and second time I got 24. So I stick with 24. 24. Here is the maximum 17, right? Maximum 17? Here it's No? showing. Here it's showing in the picture right now. No. Duration. Critical path. No, we are talking about the activities where we have start and predecessor and duration. The network diagram, which we're solving one question. There is one question before the duration. No. Yeah. There is here inside the two question is there. Two Yeah, question. yeah. Well, I'm talking about the Yeah. first question, which is for activities A, B, C, D, E, F, G, H. Yeah. This one here I maximum it will go to the start of end of finish. For me is a 15. 50. Start of end. Rakesh, did you solve this question? No. It got. You want the No, sir. critical path? Actually, I have not done this Critical. one. I Ah, taken the answer only. Critical path is 24 for me.
I don't know for others. Critical path is 24. And Satya, he answered this one. I don't know, is it right or wrong? Satya, is it correct when you solve the same way? You have tried, sir. Actually, in Finnish, actually, I have confused 17. In Finnish, sir, I have taken Okay. 17. As it was 17, duration 17, 0, sir. so I have taken. सार्जन, आपने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन? यस सर, किया था सर, फिर कैसे आया पाथ था? दिया था, हाँ, फिर कैसे? 17 आया था सर। 17 है? हाँ, DEFG है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। DEFG है पाथ, डी 17 होगा। ओके ओके, 17 है। मुझे आपने इनबॉक्स किया था, क्या किया था ये क्वेश्चन? मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं डायग्राम में किया था सर। अच्छा, डायग्राम में किया था। मैं फॉरवर्ड अगर कर फॉरवर्ड देता हूँ करेंगे तो फिर मैं देख लूंगा, अगर एक्यूरेट है तो कर दो सर, ओके। ग्रुप में किया। ओके, हाँ ओके। तो 17 निकला आपसे भी? जी, Okay, no problem. So check it again. If you have any problem, then you can solve it again. I'll not spend more time here for this question because it was 3 lectures before. You have to practice one more time for you guys only. So and tell me the question number, last question, which is asking the duration only from the diagram. Rabindra was telling me he is going for 16, right, Rabindra? The No, duration. three. 3, huh? 3. Yes. And Sarjan also is asking about 3. Okay. What about Satya? 3 only, sir. 3. 3. Rakesh? Yeah, 3, sir, 3. Okay, great. Okay. So we are clear here up to now for the question today. And if you need one more practice, two more practice, take the sum activities and 1, 2, 3, A, B, C, any activities, and practice one time more, two time more, so that you just enough to solve the question. Okay. Now today we will. Yes. Today we are failed except Rakesh. Yes, Rakesh has more good opinions and Yeah. more good approach. Really, I appreciate Rakesh. Rakesh, good approach. Really, he is a little bit working hard more. And are you listening the lectures and as well as slides? Yes. Video I listened actually, but PDF not reviewed. Video, Okay, but no problem. video I listened. Okay, great. Whenever you have a time, listen videos, even only voice, not video. Just listen the voice. You will get something. Even from the listening side, not 100%, no problem. 20% you will get from your ears. Something you will get 20%, 10%. So whenever you will review the slides, you will get more, 40%, 50%. At least you will get something. Later on, you can combine video and slides. You can combine. Then you can see whenever you have time. Anyway, we'll start our today lecture, and today we are going to discuss about the determined budget process. Determined budget process is actually coming after the estimate cost. तो आज में हमने बजट को फाइनलाइज कर देना है। बजट हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम किसी भी प्रोजेक्ट का बजट निकालने के लिए जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की, एक्टिविटी की बेस पर हमने ड्यूरेशन निकाली। ड्यूरेशन के बाद हमने ड्यूरेशन को फाइनलाइज किया। ड्यूरेशन के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, हमने यूज किए और हमने बजट फाइनलाइज और कास्ट निकाल ली, एक्टिविटीज की कास्ट निकाल ली। जब हमने एक्टिविटी की कास्ट निकाल ली तो जितनी भी एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट के वर्क पैकेज में होंगे या उस प्रोजेक्ट में होंगे
या उस कंट्रोल अकाउंट में होंगे, हम उनको एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करने के बाद हम उस वर्क पैकेज की टोटल कास्ट निकाल लेंगे। अगर एक वर्क पैकेज की कास्ट अगर हमने निकाल ली, दैट्स मीन if we have 4 work package, 5 work packages, then you can aggregate them again and to make it final cost of the project. So time phases project expenses and sync with the schedule, create the cost baseline. हमने जब schedule baseline बनाया थी, हमारे पास एक baseline बन गई थी जब हमने finalize schedule को किया था। यहाँ पर कास्ट की बात आ रही है, तो हम कास्ट भी जब फाइनलाइज कर देंगे, रविंद्र अपना माइक क्लोज कर दे, जब हम कास्ट कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कास्ट की भी एक बेसलाइन फाइनलाइज हो जाएगी। उसके बाद आप कोई कास्ट में चेंजेस करेंगे तो आपको चेंज कंट्रोल बोर्ड के थ्रू ही आना पड़ेगा। आप नॉर्मली कास्ट के या बजट को या कास्ट को चेंज नहीं कर सकते होंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपको क्या करना है, अगर कोई कास्ट वाइज चेंजेस आती है या एक एक्टिविटी पे ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं जो हमने प्लान किए थे या हमने जो बजट बनाया था उसका, तो उस वाले से नेक्स्ट एक्टिविटी पे डेफिनेट इफेक्ट पड़ेगा। ए एक्टिविटी पे एक्सपेंस था 10,000 और आपने 12,000 एक्सपेंस लगा दिया एक ए एक्टिविटी पे, जबकि वो जो $2,000 जो बी एक्टिविटी का एक्सपेंस था वो आपने ए पे लगा दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल बजट में से आपने 2,000, इसका मतलब है लैगिंग में है आप। लेटर ऑन हम ये भी समझेंगे कि कैसे हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो हम जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट है वो हम सीखेंगे लेटर ऑन, जब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे होंगे प्रोजेक्ट को। फिलहाल हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं। प्लानिंग्स में हमारे पास फाइनलाइज होते हैं, बेस प्लान होते हैं, जिसमें स्केजुअल जो है वो बेस प्लान होगा। उसके बाद स्कोप को हमने देखा था, स्कोप बेस लाइन थी। अब हम कास्ट बेस लाइन फाइनलाइज करने जा रहे हैं जो कि प्लानिंग का हिस्सा है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग का हिस्सा है। तो हमारे पास क्या होना, इसके अंदर क्या होता है, बजट के अंदर प्रीवियस फॉर ऑल फंड्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कंटीजेंसी रिजर्व। इसके अंदर कंटीजेंसी रिजर्व भी इंक्लूड होंगे जब हमने बजट मेंशन करना है प्रोजेक्ट का। प्राइस हम मेंशन नहीं कर रहे, हम फाइनल बजट कर रहे हैं। मैंने पिछली स्लाइड में आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहां पर शो किया था कि हम बजट को फाइनलाइज करते हैं। अगर मैं आपको शो करा सकूं दोबारा तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं कि ये जो फाइनल प्रोजेक्ट का बजट होता है, ये इसके बाद प्राइस हम मेंशन करते हैं। प्राइस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती हैं चीजें, वो मैंने आपको पहले बताई। डायरेक्ट कास्ट है, ये सारी चीजें मिला के जब आप प्रॉफिट मार्जिन, तो जो फाइनल प्राइस होती है बिड के हिसाब से, उसको हम क्या करते हैं, बजट सॉरी प्राइस कंसिडर करते हैं। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओनली। जी वाजिद भाई, अभी तक तो नहीं आए, अम्मी के साथ होंगी तो ठीक है। बाहर दरवाजा मैं खोल के आ गया था तो आ जाएंगी, या तो कॉल कर लेगी वो। ठीक है, मैं लेक्चर में हूँ। ओके ओके, तो हम प्राइस की बात डिफरेंट करते हैं और जब हम बजट की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होगी। बजट आपका डिफरेंट होगा और प्राइस फाइनल होगी जब आप बात करेंगे प्राइस की। तो जब हम बजट डिफाइन कर रहे हो तो उसमें टोटल प्राइस नहीं होगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, हमने बजट फाइनल करके देना है। प्राइस हमारी हायर मैनेजमेंट, जो फाइनल जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करेगी बिड के लिए। तो बजट के लिए हमारे पास हमने चीजें देखी, हमारे पास कास्ट आ गई, एक एक एक्टिविटी की कास्ट आ गई हमारे पास, हमने उसको एग्रीगेट कर देना है। जब एग्रीगेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल बजट आ जाएगा। यहाँ कास्ट एग्रीगेशन की टेक्निक, यानी जो मेथड है वो यूज किया गया है। हायर एंड लोअर लेवल कास्ट आर सम्ड टुगेदर। यहाँ पर हम देखें, प्रोजेक्ट का अगर बजट हमने मेंशन करना है या कास्ट उसकी निकालनी है या बजट फाइनलाइज करना है, तो हमारे पास वर्क पैकेजेस जितने भी होंगे उनको सम अप करेंगे, हम उनका बजट सम अप करेंगे और कंट्रोल अकाउंट्स को फिर सम अप करेंगे, तो हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट का बजट आ जाएगा। कास्टिंग के बाद हमने बजट उसको फाइनलाइज कर दिया। अगर इसको हम यूं कास्ट एग्रीगेशन को यूज करें तो इस स्लाइड में जैसे मेंशन किया गया है, इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा। एक्टिविटी एस्टिमेट्स में हमारे पास A1 एक्टिविटी है, A2 है, A3 है, A4 है, और हमने डॉलर वाइज इसकी जो कास्ट हमने निकाली, $25, $25, इसी तरह $45 और सो ऑन। हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज हो सकती हैं, 100,000 एक्टिविटीज हो सकती हैं।
हम उन एक्टिविटी की एस्टिमेट्स, जो कास्ट एस्टिमेट है, वो हमने लगाए हैं। उसके बाद जब हमने एक वर्क पैकेज है ये, जिसके अंदर 4 एक्टिविटीज हैं, जिसके $25 हैं, 4 एक्टिविटीज हैं, उसका सम अप किया हमने, तो वर्क पैकेज 1 है ये, और वर्क पैकेज 2 में फिर 250 है। इसी तरह वर्क पैकेज 3 में हमारे पास 500 कास्ट आ रही है। उसके बाद वर्क पैकेज 4 में हमारे पास $175 आ रही है। तो हम जो कास्ट एग्रीगेशन में लोअर लेवल से यानी एग्रीगेट करते हैं, पूरी एस्टिमेशन करते हैं एक्टिविटी की, वो हम कंप्लीट करने के बाद वर्क पैकेज में उनको ऐड अप करते हैं। फिर जितने भी वर्क पैकेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको सम अप करके हम कंट्रोल अकाउंट में ऐड अप करते हैं। और जब हम सबमिशन कर देते हैं इसकी, तो जितने कंट्रोल अकाउंट होते हैं उनके अंदर हम प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स डालते हैं। फिर हम कंटीजेंसी रिजर्व डालते हैं उसके अंदर। कंटीजेंसी रिजर्व के बाद हमारे पास कास्ट बेस लाइन क्रिएट हो जाती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमने क्रिएट करनी होती है। मैनेजमेंट रिजर्व सीनियर मैनेजमेंट डालती है, और उसके बाद फाइनल जो कास्ट बजट होता है वो हमारे ऊपर प्रोजेक्ट का जो बजट होता है वो डिफाइन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोसीजर है, वो जो कास्ट एग्रीगेशन की टेक्निक या मेथड है, वो हम यूज करते हुए फाइनल जो बजट होता है वो हम बनाते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन। जबकि अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल तक बात करें तो ये 1355 जो डॉलर शो किया गया कास्ट बेस लाइन, ये एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर होता है, और यही बना के देना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। एक्चुअल जो वर्क है वो है एक्टिविटी बेस पर, जो आपको टाइम लगाता है, टाइम टेकिंग है। जो कास्ट मैनेजर होते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम कर रहे होते हैं, कास्ट मैनेजर जो कास्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, एक्चुअल उनका काम होता है। जब वो करके आ जाते हैं एक्टिविटी बेस पर, आपका कास्टिंग निकाल देते हैं, एस्टिमेटर जिसको कहते हैं, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट एस्टिमेटर एक पोस्ट है। एक यहाँ पर आए दिन आपके पास वैकेंसीज भी आती रहती हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं, या आप भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब आपको जब पता चल गया है कास्टिंग के स्केजुलर का, आप भी आगे जो भी इनमें जो आप स्पेशलिटी लेना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, जिस जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, इन तमाम जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं अभी, कोई इसमें से हो सकता है अपने ही प्रोजेक्ट का स्केजुलर बनना चाहे, कोई हो सकता है प्रोक्योरमेंट में जाना चाहे, कोई हो सकता है, जो हम प्रोक्योरमेंट स्टडी करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स आप पढ़ेंगे, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हर फील्ड का बंदा, समझ लें पीएमपी बेसिकली एमबीबीएस डिग्री है एक, और पीएमपी एमबीबीएस के बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे पीएमपी के बाद आप कोई स्पेशलाइजेशन फील्ड चूज कर लेंगे, उसमें से सिलेक्टिव फील्ड आप यूज करेंगे। आप इसमें से कई लोग जो पीएमपी कर लेते हैं उसके बाद वो किसी एक फील्ड को चूज करते हैं। कोई लोग सिर्फ क्वालिटी की तरफ चले जाते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट करने के बाद, और कई जो स्केजुलिंग में चले जाते हैं, प्लानर्स बन जाते हैं, यानी प्रोजेक्ट प्लानर्स बन जाते हैं, और स्केजुलिंग करते हैं और कास्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राइमावीरा कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने आप को आप स्पेशलाइजेशन की तरफ आप लेके जाएंगे जब आप पीएमपी कर लेंगे। फिर आप फील्ड जो भी मिलेगी आपको, जो भी फील्ड मिलेगी आप उसको यूज कर सकते हैं, नो इशू। जब आप बजट बना लेते हैं, एग्रीगेशन कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट में बी फाइनेंस थ्रू अ वैरायटी ऑफ वेज। तो आपको डेफिनेट पता चलेगा ये बजट जो बन गया है कि फाइनेंस इसको कहां से होगा, ये भी तो देखना है ना कि कहां से फाइनेंस होगा। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंडिंग यूज, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स में चेंज एंड बी सब्जेक्टेड टू ग्रेटर लेवल ऑफ सिक्योरिटी स्क्रूटनी एंड कंप्लायंस। तो हो सकता है कि जो स्पॉन्सर है वो खुद यूज कर रहा हो बजट, या थर्ड पार्टी से ले रहा हो, या कोई, यानी फाइनेंसिंग जो होगी वो किसी बैंक को भी स्पॉन्सर बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या कोई और अथॉरिटी होगी जो कि उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रही होगी। तो आप डिफाइन करेंगे कि बजट कहां से हो सकता है कि हाफ बजट कोई एक पार्टी कर रही हो, हाफ बजट पे या फाइनेंस जो है वो एक पार्टी कर रही हो। तो डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। यही चीज अगर हम एनालिसिस करें, रिजर्व एनालिसिस, यानी अगर हमने करना हो, हमने देखते हैं कि कास्ट बेस लाइन हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई चीज ऐसी है, तो हम ये देखते हैं कि अगर ए एक्टिविटी के बाद बी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और टोटल एक्टिविटी थ्री एक्टिविटीज, सी एक्टिविटी तक हमारे पास प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज हैं, तो आप क्या करते हैं, एक्टिविटी ए परफॉर्म हो गई है, आपने एनालिसिस करना है कि रिमेनिंग हमारे पास बजट कितना है। तो एनालिसिस भी कर सकते हैं डिफरेंट वेज में।
तो हमारे पास सबसे पहले रिजर्व एनालिसिस है, जैसे कंटीजेंसी रिजर्व या मैनेजमेंट रिजर्व देखते हैं कितने आपके पास रिमेनिंग है, तो आप कंटीजेंसी रिजर्व का कैलकुलेट करेंगे, हमने यूज कितने किए ए एक्टिविटी पर, बी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए कंटीजेंसी रिजर्व ए पर यूज हो गया कि नहीं हुआ, या हमारे पास सेव है अभी। तो हम अगर हमारे पास सेव है तो हम बी पर अगर ज्यादा रिस्क आ गया है तो हम कंटीजेंसी रिजर्व जो ए वाला था बी पर यूज कर सकते हैं, डिजास्टर आ गया है। या ए एक्टिविटी का जो हमने जो कंटीजेंसी रिजर्व लगाया था और बी पर जो लगाया था, उसके बाद सी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस पर ज्यादा रिस्क आ गया है, जो ए पर यूज नहीं किया बी पर यूज नहीं किया तो सी पर यूज कर लेंगे। इसी तरह से आप एनालाइज करते होंगे, रिजर्व एनालिसिस करते हैं कि भाई हमारे पास इस वक्त कंडीशन क्या है रिजर्व की, क्या यूज हो गए हैं कि नहीं यूज हुए। तो इस किस्म के एनालिसिस को हम डाटा एनालिसिस की टेक्निक कहते हैं, जिसमें डाटा एनालिसिस का मेथड कहते हैं, जो कि रिजर्व एनालिसिस होगा। रिजर्व को आपने देखना है कितना रिजर्व है, मैनेजमेंट रिजर्व यूज हुए कि नहीं हुए, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी नहीं होती, वो परमिशन के लेके आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था, इसी स्लाइड को मजीद सर मेरा क्वेश्चन है जी सत्या। फॉर एग्जांपल सर अपना अपना एक प्रोजेक्ट है जिसमें 20 एक्टिविटीज है, 20 एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज में 20 एक्टिविटीज है, उसमें 30 मिलियन शायद फाइनल हुआ है। 30 बिलियन जी जी, तो 37 मतलब 20 एक्टिविटीज में 18 एक्टिविटीज में अपना जितना बजट जो बजट डिटरमाइन हुआ था वो खत्म हो गया, 17-18 एक्टिविटीज। तो बाकी 2 एक्टिविटी क्या स्किप होगा ना वो, मतलब नहीं आप देखेंगे ना, आप देखेंगे पहले तो आप जस्टिफिकेशन देंगे, जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होंगे ना, फोरकास्ट दे रहे होंगे, आपने जब 20 एक्टिविटीज आपने बताया और 30 मिलियन आपने बजट बताया, आपने कहा कि 17 एक्टिविटी फिनिश हो गई हैं और आपके पास बजट 30 मिलियन फिनिश हो गया और आपके पास रिमेनिंग 3 एक्टिविटीज हैं अभी, और बजट आपका जो था आपने जो फाइनलाइज किया हुआ था वो यूज कर चुके हैं आप। या तो आपका स्कोप बढ़ा है, आपको एनालाइज करना होगा, आपको वक्त, आप परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं ना डेली बेसिस पे, आपने फोरकास्ट भी जाहिर करना होता है। तो आप क्या करते हैं, आपने या तो स्कोप बढ़ाया है, आपको देखना होगा स्कोप बढ़ा है या स्केड्यूल बढ़ गया है या कास्ट किसी एक्टिविटी की बढ़ गई है आपसे। तो जो कास्ट बढ़ी है क्लाइंट से जस्टिफिकेशन देनी होगी कि भाई ये कास्ट बढ़ी है, ये जो 3 एक्टिविटीज रिमेनिंग है, हो सकता है आपको 3 मिलियन की रिक्वायरमेंट हो, 3 मिलियन कौन पे करेगा, किसकी वजह से हुआ, ये आपको देखना होगा। और अगर आपको आपकी गलती की वजह से हुआ, रीवर्क हुआ आपका, जो हमने नॉन कन्फर्मेंस कास्टिंग की थी, जो हमने पीछे हमने नॉन कन्फर्मेंस कास्टिंग दी, आपको रीवर्क हुआ, आपने आपसे बहुत मिस्टेक्स हुई क्वालिटी कंट्रोल की वजह से, आप या क्यूए की वजह से, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग कर रहे क्यूए की वजह से, तो क्यूए की वजह से आपके आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, आपकी वजह से आप स्केड्यूल कंप्रेस नहीं कर सके, स्केड्यूल लेट हो गया, आप रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं दे सके सही प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर आपकी मिस्टेक्स होंगी तो क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा, तो आपके पास रिजर्व है वो आप लगा देंगे। ये 30 मिलियन बजट है आपका, ये टोटल प्राइस नहीं है, हो सकता है प्राइस आपको 35 ले रहे हो आप, तो आपने जो आपके पास रिजर्व होगा आप यूज करेंगे अगर आपकी मिस्टेक नहीं है। अगर आपकी मिस्टेक है तो आपको पे करने होंगे, खुद ही पे करने होंगे रिजर्व से, क्योंकि आपने रिजर्व यूज नहीं किए अभी अनटिल नाउ। 3 एक्टिविटी पे आप अपने रिजर्व यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कंटीजेंसी रिजर्व है वो भी यूज हो रहे हैं, हो सकता है वो 1 मिलियन हो और आपके पास 2 मिलियन मैनेजमेंट रिजर्व है आपके पास, तो टोटल जितना आपके पास प्राइस होगी वो आप कंप्लीट करके बाद प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। तो आप प्रॉफिट सिर्फ ले लेंगे और ओवरहेड्स आप ले लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? ओके। इसके बाद अगर हम देखें रिटायरमेंट बजट में, ऑल द कास्ट एंड रिजर्व आर एडेड टुगेदर टू डिटरमाइन द बजट, यानी फाइनल बजट हमने प्रोजेक्ट का जो निकालना होता है उसमें आपके पास प्राइस नहीं, बजट हम बात करें, प्राइस में फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैनेजमेंट रिजर्व भी ऐड है इसमें और बजट भी ऐड है, वही स्लाइड मैंने यहां पर भी मेंशन कर दी है मैंने, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्टिविटी बेस पर भी आप कंटीजेंसी रिजर्व लगाएंगे, उसके बाद वर्क पैकेज के ऊपर कंटीजेंसी रिजर्व लगाएंगे, उसके बाद कंट्रोल अकाउंट होगा, फिर कास्ट बेस लाइन क्रिएट होगी। तो एक्टिविटीज जो जितनी भी एक्टिविटीज है, प्राइमवेरा की जो है वो यहाँ पर पिक्चर शो की गई है। प्राइमवेरा इस तरह से आपको वो एमएस ऑफिस, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसका यूजर सिमिलर ही है, बस सिर्फ उसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज दिखता है, अदरवाइज सेम है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिव्यू की, हम डेफिनेट जब आप वो फाइनल बजट दे देते हैं तो आपके पास एक और मेथड भी होता है कि आप कंपेयर करते हैं हिस्टोरिकल जो आपने एस्टिमेट लगाए थे पास्ट प्रोजेक्ट्स में, कंपेयर करते हैं कि भाई हमने हमारे कहीं ज्यादा बजट तो नहीं बन गया, कहीं हम बहुत पीछे तो नहीं आ गए। तो हम देखते हैं कि किस टाइप का हमने पैसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे हमने जो एस्टिमेट्स लगाए थे वो हम देखते हैं, उसमें भी हमें फिर हम प्योर कर लेते हैं अपने बजट को, रिफाइन कर लेते हैं। अगर उन्होंने कहा था कि रफ मैग्नीट्यूड वाला बजट चाहिए तो आपको रफ मैग्नीट्यूड वाला देना है, और प्लस माइनस आपने देना है, एक्यूरेसी देनी है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी बतानी है जो हमने टेम्पलेट्स में मेंशन किया था। इसके बाद हमारे पास फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन है। Expenses incurred have to be reconciled with the limit imposed funding for ensure that expenses do not exceed the funds available to accomplish the project work. इसको मैं सिंपल बता दूं कि फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन में क्या करते हैं हम कि एक एक्टिविटी के ऊपर अगर $10,000 एक्सपेंस है तो $10,000 ही एक्सपेंस करना है, ये लिमिट है आपके पास। अगर आपके पास कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और कैश फ्लो में फर्स्ट कैश फ्लो में आपके पास प्रोजेक्ट के ऊपर 3 मिलियन इशू हुआ है कैश फ्लो में, और उसमें 3 एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है जो कि 5 डेज में कंप्लीट करनी है, तो 3 एक्टिविटी फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन में आपको 3 एक्टिविटी के लिए 3 मिलियन मिला है, तो 3 मिलियन में ही आपने कंप्लीट करना है, 3 मिलियन से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो रिकंसिलिएशन में आपके पास क्या होता है, लिमिट दे दी जाएगी आपको और आपने उसी में एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। इसके बाद हम फाइनल कर देते हैं कि जो कास्ट बेस लाइन होती है, कास्ट बेस लाइन हम पहले भी बताया था, मैं आपको यहां पर फिर बता रहा हूं कि बजट जो होगा प्रोजेक्ट का वो कास्ट बेस लाइन प्लस मैनेजमेंट रिजर्व होंगे, ये बजट का ये यानी होगा। तो कास्ट बेस लाइन सिर्फ किस चीज पे होगी, कास्ट बेस लाइन मैंने मेंशन किया था पहले भी कि जो एक्चुअल कास्ट होगी एक्टिविटी की प्लस जो कंटीजेंसी रिजर्व होंगे वो कास्ट, प्रोजेक्ट कास्ट, डायरेक्ट कास्ट जो होगी, और जो मैनेजमेंट जो कंटीजेंसी रिजर्व होंगे वो कास्ट बेस लाइन में शामिल होंगे। इंक्लूड कंटीजेंसी रिजर्व डज नॉट इंक्लूड मैनेजमेंट रिजर्व, यानी कास्ट बेस लाइन क्या होती है, इंक्लूडेड होंगे कंटीजेंसी रिजर्व के, मैनेजमेंट रिजर्व उसमें इंक्लूड नहीं होगा। प्रोवाइड टाइम फेज्ड प्लान टू एक्सपेंडिचर, एस कर्व वो हम बाद में देख लेंगे कैसे हम, फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ द चेंज कंट्रोल प्रोसेस, हमें डेफिनेट हमें जाना है चेंज कंट्रोल में। फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बेसिकली आपने शो कराना होता है फोरकास्ट में कि जब आप बजट बना लेते हैं तो आपके पास आपने फंडिंग बतानी होगी कि किस डेट पर हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, यानी डिजाइन के कोई अगर फंड है तो वो आप डिफाइन करेंगे, और डेवलपमेंट का फंड कितना है, यूज्ड फंड कितना है, न्यू फंड कितना आपको चाहिए या लग रिमेनिंग है आपके पास। इसी तरह से अगर आपके पास जस्ट यूज्ड फंड इतना है, यूज्ड फंड इतना है, उसके बाद न्यू फंड कौन सा है कोई अगर है तो आप शो कराएंगे। एस्टेब्लिश द स्पेसिफिक पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ व्हेन फंड्स नीड टू बी रिलीज्ड, यानी कब आपके ऊपर फंड्स को रिलीज करना है, यानी जिसमें कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो कब कब देना है। वो ऑर्गेनाइजेशन जब आपका स्केड्यूल होता है बनता है प्राइमवेरा या किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आपको शो करा देता है कि इस डेट पर फर्स्ट डेट पर आपका एक कैश रिलीज हो जाएगा, दूसरी फर्स्ट डेट पर आपको कैश नेक्स्ट रिलीज हो जाएगा, या एक्टिविटी परफॉर्म किए कर रहे हैं हमारे पास या फेज एक नया फेज आ गया है उसका जो फंड है वो रिलीज हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्या करती है, फंड की रिलीजिंग करती है प्रोजेक्ट के ऊपर। इसको हम कहते हैं फंडिंग रिक्वायरमेंट्स या प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट जो कि एस कर्व में शो की गई है। अब यहां पर इस कर्व को आपने अंडरस्टैंड करना है, बाज़ दफा एग्जाम में यही कर्व आई होती है और आपने इसको अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो इजी हो जाएगा आपके ऊपर बाद में जब आप परफॉर्मेंस यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक कास्ट बेस लाइन शो की गई है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद मैनेजमेंट रिजर्व है, उसके बाद प्रोजेक्ट बजट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में ये जो कर्व बन रही होती है बेसिकली, ये जो लाइन है, जो डॉटेड नहीं जो डार्क लाइन है, ये कर्व बेसिकली एस कर्व कहलाती है, एस कर्व के नाम से मशहूर है, ये फेमस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो एस कर्व से आप प्रोजेक्ट का देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट टाइम के हिसाब से जा रहा है, यानी कम्युलेटिव वैल्यूज, यानी कि प्रोजेक्ट की कास्ट यहाँ पर और टाइम यहाँ पर है।
तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे कास्ट बेस लाइन आपने मेंशन कर दी कि ये बेस लाइन है, एक्चुअल क्या है एक्सपेंडिचर देखें, अब डाटेड लाइन में एक्सपेंडिचर मेंशन किए गए हैं, और जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर शो की गई है कि इस वक्त ये रिक्वायरमेंट थी, यहाँ आना चाहिए था, उसके बाद आपको ये लेवल आना चाहिए था, जबकि एक्सपेंडिचर जो है ये जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट बताई गई है कि इस स्टेप पर इतने टाइम के बाद ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इतने टाइम के बाद ये रिक्वायरमेंट, इस जगह पर इतना हमें फंड चाहिए था, उसके बाद इतना फंड चाहिए था, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो ये है। इस तरह से हमारे पास बजट एट कंप्लीशन यानी बीएसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेटर ऑन हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बीएसी क्या है, यहां पर सिर्फ मैं इतना बताता जाऊं कि बजट एट कंप्लीशन होती है बीएसी, तो ये हम कैलकुलेट भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कैलकुलेशन बाकी है पीएमपी की, जो कि हमने फाइनलाइज करनी है। टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट एंड पीरियडिक फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्वार्टरली एनुअली आर ड्राइव फ्रॉम द कास्ट बेसलाइन, तो आप कास्ट बेसलाइन से इसको ड्राइव कर सकते हैं। द कास्ट बेसलाइन विल include the projected expenditure plus anticipated liabilities. Funding often occurs in incremental amount and may not be evenly distributed, which appear as steps. यानी हो सकता है कि आपको ना मिले वो चीज, लेकिन रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की वही होगी जो हमें यहां पर मेंशन की गई है। तो ये था आपके पास जो प्रोजेक्ट का बजट है हम कैसे बनाते हैं, और ये एस कर्व मजीद आपको हाईलाइट की गई है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए। इसको अपने स्लाइड पे भी दोबारा आप देख सकते हैं, इसको कैसे हमने समझना है, ये हम लेटर ऑन जब हम कैलकुलेशन करेंगे, परफॉर्मेंस बना रहे होंगे प्रोजेक्ट की, जिसमें हम बीएससी भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जिसमें हम स्केड्यूल की डेट करेंगे, कितना हम लैग कर रहे हैं, कितना हमने कास्टिंग यूज किया और कितना रिमेनिंग है, फोरकास्ट निकालेंगे, तो उसमें हम कैलकुलेट भी करेंगे किस तरह से होता है, और इस कर्व को दोबारा भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर बस इतना काफी है कि कास्ट बेस्ड लाइन जो होगी वो ये दी गई है, और डॉटेड लाइन जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर यूज हो रहे हैं, और लिहाजा हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो टोटल बजट मैनेजमेंट रिजर्व को यूज करते हुए हमारे पास ये है। और एक्चुअल अगर आप देखें तो यहाँ इस प्रोजेक्ट में शो किया गया है कि एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कास्ट जो बेस लाइन है उससे एक्सीड कर गए हैं। कास्ट बेस लाइन मैनेजमेंट रिजर्व को यूज नहीं कर रही जो बीएससी का इक्वल है, जबकि एक्सपेंडिचर जो डॉटेड लाइन है वो यहां तक जा रही है, और ऑलमोस्ट हाफ रिजर्व जो है वो इस्तेमाल हो गए हैं जो कि मैनेजमेंट रिजर्व है। जो कंटीजेंसी रिजर्व थे वो तो हमने इस्तेमाल कर ही लिए हैं इसके अंदर, जबकि मैनेजमेंट रिजर्व भी ऑलमोस्ट हाफ यूज किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो बता सकता है। सर जो कॉस्ट बेसलाइन है, कॉस्ट बेसलाइन वो प्रीवियसली प्रोजेक्ट जब हम लोग का इलेक्शन कमीशन जो होगा पहले वो प्री डिफाइंड रहता है जी, जो इन बिटवीन फंडिंग रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट रिजर्व ये सब इन बिटवीन सब ये डिफाइंड होता है। बिल्कुल आप जब एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूशन फेज में होते हैं, तो उस वक्त आपको रिक्वायरमेंट बाद में पता चलती है कि भी रिक्वायरमेंट तो समथिंग डिफरेंट थी। हमारा थोड़ा सा जो कास्टिंग में प्रॉब्लम आ गया था, उससे थोड़ी सी हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये चीज यहां पर मिलनी चाहिए, ये चीज यहां पर मिलनी चाहिए। तो अब यहां पर इससे दो आप रिजल्ट्स ले सकते हैं फंडिंग रिक्वायरमेंट्स में। लेट्स से पहला फंड जो है वो आपको यहां पर चाहिए, पहला फंड यहां से, यहां दूसरा फंड चाहिए, तीसरा फंड यहां चाहिए, चौथा फंड यहां चाहिए, पांचवा फंड ये, और इस तरह से आप चाहे। 1 मिनट। सत्या, तो सत्या का क्वेश्चन ये था कि फंडिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हम डिफाइन कर देते हैं कि कहां कहां हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, और बाज दफा हमें कास्ट से जो बेस लाइन है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो दो कॉन्सेप्ट है यहां पर।
यानी हमें दो कॉन्सेप्ट वाइज हमें यहाँ पर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स की देखनी है। बाज़ वो एक्चुअल के बेसिस पे देखते हैं, बाज़ दफा हमें रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं, उस हिसाब से देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट तो सर हम एजाइल मेथड और हाइब्रिड मेथड के अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं ना? डेफिनेट कास्ट हम देखेंगे, अगर हम वाटरफॉल में कर रहे हैं तो पहले प्लान हो जाएगा, ये सारा प्लान हो जाएगा पहले कि इतनी कास्ट लगेगी, इतना सारा कुछ लगेगा, चेंज नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, यानी उसको चेंज करने के लिए आपको चेंज कंट्रोल बोर्ड। और अगर आप वाटरफॉल एजाइल कर रहे हैं तो डेफिनेट इस पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट तो आपको मेंशन करनी ही है ना, बेसलाइन तो बनानी ही है। लेकिन इसमें जब आप स्प्रिंट देते हैं ना, तो स्प्रिंट वाइज आपको, यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में स्प्रिंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट की होगी, और जब आप सेकंड फेज यानी सेकंड स्प्रिंट में जाएंगे तो नेक्स्ट कास्ट की आप बात करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं, दोनों को आप यहां पर यानी क्लियर कर सकते हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी को और वाटरफॉल को भी। लेकिन मेथोडोलॉजी सेम होगी, यानी कास्टिंग मेथोडोलॉजी सेम होगी और स्केड्यूल भी सेम आप बनाएंगे, सिर्फ अप्रोच उसकी डिफरेंट होगी यूज करने की। यस जी सत्या, तो यहां पर आप कह रहे थे सत्या कि जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली इस स्टेजेस हैं फंडिंग की, कहां कहां आपको रिक्वायर्ड पड़ेंगे, कहां कहां आपको रिक्वायर्ड है कास्ट जो है प्रोजेक्ट की, आपने पहले स्केड्यूल कर दिया। लेट से आपने फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 में आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो पहली जो रिक्वायरमेंट होगी 1 जनवरी को होगी, तो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो 1 फरवरी को होगी, थर्ड वन वो आपको होगी। तो रिक्वायरमेंट बताई जाएगी आपको कहां कहां जो फंडिंग है रिलीज होगी। ठीक हो गया? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। अगर ब्रेक लेनी है 5 मिनट तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सोच रहे हैं कोई क्वेश्चन है तो इस बहाने तो हम 2 मिनट ब्रेक लेंगे, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। 10:06 है, हम 8 पर दोबारा वापस आएंगे। ओके ओके। यस वी आर बैक, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्वालिटी का। क्वालिटी जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कास्ट हमारा जब खत्म हुआ है तो हमने क्वालिटी को स्टार्ट करना है। जो आज तक हमने क्वालिटी के बारे में स्टडी किया है वो सब रॉन्ग है। आज से आपको नई थ्योरी मिलेगी और नई अप्रोच मिलेगी कि क्वालिटी होती क्या है। जो आप आम यूज करते रहते हैं क्वालिटी है वो आपको छोड़ दें। अब आपको जो थ्योरी मिलेगी
वो आपके पास एक डिफरेंट थ्योरी होगी और डिफरेंट अप्रोच होगी। नेक्स्ट टाइम आप उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे और आप उससे सीखेंगे कि क्वालिटी बेसिकली है क्या। क्वालिटी बेसिकली डिग्री है वो जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए होती है। वो डिग्री है जो कि कस्टमर की प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है उस डिग्री पर, उस लेवल पर, वो क्वालिटी है। कस्टमर ने कहा कि ये चीज मुझे $5 में एक बना के देनी है और मुझे कास्ट जो है टोटल $5 पड़नी चाहिए, और वो कास्ट में ये मटेरियल यूज हो, ये चीज यूज हो, उससे ज्यादा मटेरियल यूज ना हो और उसी कास्ट में बने, तो ये क्वालिटी कहलाएगी। अगर उससे आप एक्सीड कर रहे हैं तो क्वालिटी नहीं कहलाएगी। आपको कहा गया है कि एक कार डिजाइन करनी है जिसकी क्वालिटी ये हो, हमें कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है कि इस कार के ऊपर ये वाले मटेरियल इस्तेमाल हो, ये इस टाइप का इंजन यूज किया जाए, इस टाइप की सीट्स इस्तेमाल की जाए, इस टाइप की लाइट्स इस्तेमाल की जाए। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हमने एग्जैक्ट 100% कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, तो हम 100% क्वालिटी दे रहे हैं। और अगर हमने 100 कस्टमर की रिक्वायरमेंट छोड़ के हमने कुछ और किया तो हम क्वालिटी नहीं दे रहे। बेशक हमने उसकी जगह बॉडी को चेंज कर दिया, अच्छी बॉडी लगा दी, तो ये क्वालिटी नहीं कहलाएगी। आपने फीचर वो ऐड कर दिए जो कस्टमर ने नहीं कहे थे, तो आपने क्या किया, चेंज कर दिया, अपनी क्वालिटी वो नहीं दी, आपने क्वालिटी 100% नहीं दी। आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते ना कम कर सकते हैं। 100% क्वालिटी या वो डिग्री या वो लेवल आपने देना है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो इसका यह मतलब हुआ कि 100% क्वालिटी या क्वालिटी को हम किसी फीचर या हम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स या हम बेहतर करने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की हो उसको फुलफिल करने के लिए हम जो काम करते हैं उसको क्वालिटी कहते हैं। यहां पर मेंशन भी किया गया है टू मेन कंपोनेंट्स। पहले हम डेफिनेशन को अगर द डिग्री टू विच आर सेट टू इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल रिक्वायरमेंट, यानी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मीटिंग स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सर्विस एज द रिजल्ट टू डिलीवर कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों वर्ड एक ही हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोसेस, मैनेज क्वालिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। मैनेज क्वालिटी और क्वालिटी एश्योरेंस ये सेम चीज है। तो यहां पर दो कंपोनेंट हम यूज करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट में, जो कि एक क्यू है और एक दूसरी QC है। तो QA पहले प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, आप इंश्योर करते हैं जो जो काम हमारा किया जा रहा है वो कस्टमर की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, वो एश्योरेंस होगी आपकी। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप एश्योर करते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। तो हमारे पास क्वालिटी उस स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करना है, उसी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने को हम कहेंगे, उस लेवल को कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वर्ड हम यहां पर यूज करेंगे, ग्रेड डिफरेंट चीज है और क्वालिटी। हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी डिफरेंट देन ग्रेड, ग्रेड समथिंग डिफरेंट। जो आजकल हम ये स्टडी करते हैं या उर्फ आम में हम अपनी लाइफ में जो देखते हैं, हम बेसिकली ग्रेड को डिफाइन कर रहे होते हैं। यहां पर देख लें कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कंपोनेंट और प्रोडक्ट, किसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर किसी प्रोडक्ट की आप बता रहे हैं या उसके फीचर बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, तो वो बेसिकली उसकी क्वालिटी को आप डिफाइन नहीं कर रहे, उसकी आप ग्रेड को डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स से BMW जो कार है वो ज्यादा पायदार है, ज्यादा मजबूत गाड़ी है बनिस्बत टोयोटा के। BMW हम कहते हैं उसके ज्यादा फीचर्स हैं बनिस्बत टोयोटा के। हम ये कह सकते हैं कि BMW की ग्रेड ज्यादा है स्पेसिफिकेशन के हवाले से, उसकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा है, वो ज्यादा फीचर्स रखती है। ये नहीं कह सकते आपका उसकी क्वालिटी बेटर है, नो। क्वालिटी आप कह सकते हैं लो क्वालिटी हाई ग्रेड कह सकते हैं। इसी तरह टोयोटा को आप ये नहीं कह सकते कि वो लो क्वालिटी की कार है, नो। क्वालिटी उसकी भी बेटर होगी क्योंकि टोयोटा का जो कस्टमर है या क्लाइंट है उसने उसी हिसाब से प्रोड्यूस करने को प्रोडक्ट कहा है।
अगर सेम प्रोडक्ट आपने डिलीवर की है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, तो इसका मतलब है आपने 100% क्वालिटी दी, जबकि उसने ग्रेड उसमें डिफरेंट कर दिया, ग्रेड्स स्पेसिफिकेशन उसने चेंज की। तो ग्रेड स्पेसिफिकेशन को शो करेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स ज्यादा हो सकते हैं, और उसकी जो बॉडी है वो डिफरेंट हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि लो क्वालिटी की कार है ये टोयोटा, नो, कि हाई क्वालिटी की बीएमडब्ल्यू है, नो। आपको देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट कस्टमर की है, वो क्वालिटी आप देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो चलते चलते उसको ये प्रॉब्लम हो गया था, नो। कस्टमर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो इसका मतलब है क्वालिटी आपकी बेटर है। अगर आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, फिर आप कह सकते हैं फेलियर ऑफ क्वालिटी है, वो क्यूए क्यूसी में प्रॉब्लम होगा आपका। क्लियर? यहां पर हाई ग्रेड प्रोडक्ट विद वन न्यूमरियस फीचर इज ऑफ अ लो क्वालिटी मे डिफेक्ट्स। हो सकता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, बीएमडब्ल्यू में बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फीचर हो सकते हैं ज्यादा हो, डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और लो क्वालिटी भी हो सकती है। यानी कस्टमर ने ये एक फीचर कहे, या कस्टमर ने कहा था ये मटेरियल यूज करना है, कस्टमर अनसेटिस्फाइड है कि मैंने जो कही थी आपने कास्ट बढ़ा दी, आपने कास्ट नहीं बढ़ानी चाहिए थी, आपको स्केड्यूल दिया था, इसमें आपने जो है ना वो डिजाइन करना है, उसमें आपने नहीं किया, वो क्वालिटी आपने नहीं दी, ना कास्ट सही दी मुझे, ना मटेरियल सही दिया जो मैंने कहा था, आपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, मटेरियल यूज ज्यादा किया है, और फीचर जो मैंने कही थे एग्जैक्टली नहीं है वो। इवन के कस्टमर जो यूजर है, एंड यूजर है, वो हैप्पी है बीएमडब्ल्यू को चलाने में, बीएमडब्ल्यू को यूज करने में, लेकिन क्वालिटी उसकी लो क्वालिटी हो गई है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की उसने। जो क्लाइंट था, जो स्पॉन्सर था, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। एंड यूजर तो चलो ठीक है, वो हैप्पी है ज्यादा फीचर्स होने की वजह से, लेकिन क्वालिटी लो हो गई क्योंकि आपका जो स्पॉन्सर है वो हैप्पी नहीं है उस क्वालिटी से, जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी उसको कंप्लीट नहीं किया गया प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसको हम कह सकते हैं मे नॉट बी अ प्रॉब्लम अ सूटेबल लो ग्रेड प्रोडक्ट वन विद लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स इज अ हाई ऑफ हाई क्वालिटी, नो ऑब्वियसली डिफेक्ट्स। यानी उसमें डिफेक्ट कोई नहीं है, टोयोटा की कार है, वो लो ग्रेड है, लेकिन चूंकि उसकी क्वालिटी बेटर है, हाई क्वालिटी है, वो कह सकते हैं आपके हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट बनी है, चूंकि उसने कस्टमर की रिक्वायरमेंट, यानी जो स्पॉन्सर था, प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर था, उसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट परफॉर्म की है, और वही लेवल दिया है जो कस्टमर को चाहिए या स्पॉन्सर को चाहिए था, वही आपने लेवल दिया है। लेवल, मैं बार बार कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, लेवल जो हमने यहां पर डिफाइन किया है, डिग्री, लेवल, वो डिग्री दी है आपने जो कस्टमर या स्पॉन्सर को रिक्वायर्ड है। क्लियर? यहां पर किसी को कंफ्यूजन अबाउट क्वालिटी, ग्रेड, क्वालिटी, दो चीजें डिफरेंट है, इन दोनों में डिफरेंस रखना है, क्वालिटी और ग्रेड। क्वेश्चन में भी यही आपसे कंफ्यूज किया जाएगा, वो क्या पूछ रहा है देखना है आपको, कि क्वालिटी पूछ रहा है या ग्रेड पूछ रहा है आपसे। वो ये भी कह सकता है कि ये क्वालिटी ग्रेड लो हो सकता है, या क्वालिटी लो हो सकती है, या ग्रेड लो हो सकता है। एक चीज लो ग्रेड की हो सकती है और हाई हाई क्वालिटी की हो सकती है, और दूसरी चीज लो क्वालिटी की हाई ग्रेड हो सकती है, तो दोनों में डिफरेंस होगा। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ओवरटेकिंग द प्रोजेक्ट टीम, overworking the project team, multitasking the team, rushing planned quality inspections, not conducting inspection, यानी हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और ये चीजें भी हो सकते हैं, नॉट वेरीफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस, पुअर पीपल मैनेजमेंट। यानी ओवरवर्किंग द प्रोजेक्ट टीम तो क्वालिटी लो हो जाएगी। ओवरवर्किंग जैसे ओवर टाइम बहुत ज्यादा आप करवा देते हैं अपनी टीम से, उसके बाद मल्टीटास्किंग, आप टीम एक ही टीम मेंबर को बहुत ज्यादा आप काम दे दें तो डेफिनेटली उसकी वर्क की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि मल्टीटास्किंग ज्यादा नहीं हो, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। डेफिनेटली दिस इज द क्वालिटी फॉर अ मैन, फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल, बट ड्यू टू दिस मल्टीटास्किंग क्वालिटी विल बी लो। रशिंग प्लान क्वालिटी इंस्पेक्शन, आपने बहुत ज्यादा क्वालिटी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन, तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। नॉट कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, आप लेट से इंस्पेक्शन नहीं कर रहे तब भी आपको प्रॉब्लम आएगा। नॉट वेरीफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस, जो चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं, आप वेरीफाई नहीं कर रहे, यानी रीचेकिंग नहीं कर रहे। पुअर पीपल मैनेजमेंट, यानी पुअर मैनेजमेंट है तो तब भी आपकी क्वालिटी लो हो जाएगी।
लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होंगे? कस्टमर फाइंड द डिफेक्ट्स। अगर कस्टमर डिफेक्ट यानी क्वालिटी कंट्रोल में जाके, या आपका जब स्कोप वेरीफाइड होता है उसमें जाके अगर कस्टमर वो डिफेक्ट को फाइंड करता है तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, डिलीवरेबल्स के प्रॉब्लम ज्यादा आता है, रीवर्क करना पड़ता है। डिटेक्ट एंड करेक्ट डिफेक्ट्स बिफोर द डिलीवरेबल्स आर सेंट टू द कस्टमर। डेफिनेट आपको पहले ही सारा यानी क्यूसी पहले ही कर लेनी चाहिए कस्टमर को देने से पहले। एग्जामिन एंड करेक्ट द प्रोसेस एंड नॉट जस्ट प्रोडक्ट सर्विसेज रिजल्ट्स। एग्जामिन भी करना है और करेक्ट भी करना है। क्वालिटी इज बिल्ट इनटू प्लान एंड डिजाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट इज कमिटेड टू क्वालिटी इन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। तो आपको बहुत सारी चीजें क्वालिटी के बारे में, प्रोएक्टिव है और रिएक्टिव है। यानी प्रोएक्टिव में आप क्या करते हैं कि आपने पहले ही प्लान किया हुआ है और आप ये देखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। और रिएक्टिव में आप कस्टमर से डिफेक्ट्स फाइंड करवा के आपने रिएक्ट करना है उसके ऊपर। तो रिएक्टिव क्वालिटी हो गया और एक प्रोएक्टिव क्वालिटी हो गया। क्वालिटी में बेसिकली आजकल जो ट्रेंड है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप विद सप्लायर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी। तो कंसिडरेशन आपको लेनी है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के फिर मेथड्स हैं जो हमने पहले 6 सिग्मा की बात की थी, जो हमने 3 सिग्मा की बात की थी, वो बेसिकली कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के मेथड्स हैं कि आपको डेली बेसिस पर इंस्पेक्शंस करके आप अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है एज पर ड्राइंग, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड, वो आपको फुलफिल करनी है और डेली उसमें इंप्रूवमेंट भी लानी है। तो वो जो 3 सिग्मा 6 सिग्मा की हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप विद सप्लायर है। तो ये फैक्टर कंसीडर करते हुए आप क्वालिटी मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं। और जो क्वालिटी मैनेजर होगा वो दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है, क्यूए क्यूसी दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे यहां पर मेंशन किया गया था कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? कस्टमर एंगेजमेंट, प्रोडक्ट सर्विसेज और रिजल्ट्स, फिटनेस फॉर यूज, कंफर्मिटी टू रिक्वायरमेंट्स और फिटनेस फॉर यूज। यहां पर हम देखते हैं कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में कुछ एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जो उनको आपने मेंशन करना है या आपने उसका ख्याल करना है। जो कि कस्टमर एंगेजमेंट, यानी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का मतलब है कस्टमर की ड्यूरिंग द प्रोडक्ट आपको एंगेजमेंट भी रखनी है ताकि उसकी क्वालिटी वाइज जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए हम आगे चलें। इसका मतलब क्यूए को इंश्योर करना है, आपने कस्टमर को फीडबैक लेना है कस्टमर से। जो आपका स्पॉन्सर है या कस्टमर है या क्लाइंट है, तो उसको आपने फीडबैक लेते रहना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट होती जा रही है, कंप्लीट होती जा रही है। अगर नहीं है तो आपको उसको जो सर्विसेज या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आपने उसको रिवर्क में डालना पड़ेगा। तो उसमें इस वजह से नॉन कन्फर्मेंस कास्ट बढ़ जाएगी। कन्फर्मेटी टू रिक्वायरमेंट, यानी जो आपने कन्फर्मेटी यानी कन्फर्मेंस कास्ट कन्फर्मेटी करनी है आपने, जो कि आपने यानी लेट से आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और जो आपको हो सकता है कि जो वैल्यूएबल यानी जो स्किल्ड वर्कर हैं वो आपको यूज करने हैं और ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो बेहतर बन सके। इसी तरह से आप दूसरी बात अगर करें तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जिसमें प्लान, डू, चेक, एक्ट, 6 सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन, कैजन, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर कस्टमर, क्लाइंट या आपका जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो ये कहे कि आपने 6 सिग्मा की क्वालिटी देनी है प्रोजेक्ट के ऊपर, दैट्स मीन कि 99.9% जो है वो आपको क्वालिटी देनी है प्रोजेक्ट के ऊपर। हर लिहाज से मेंशन किया जाएगा कि क्वालिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, चार्टर में मेंशन किया जाएगा कि क्वालिटी कौन सी रिक्वायरमेंट है। क्या आप सिर्फ इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, प्लान, डू, चेक, एक्ट करेंगे, या आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देंगे, या आप लीन को यूज करेंगे, या आप केजन को यूज करेंगे। लीन और केजन बेसिकली जापानीज वर्ड है जो आप वर्ल्ड वार 2 के बाद जब जापानीज जो है दोबारा वर्ल्ड में थोड़ा फेमस हुए और उन्होंने फिर एक प्रोटोकॉल्स बनाए क्वालिटी के, उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस कराए थे। केजन का मतलब भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है।
लीन का मतलब भी वही चीजें हैं जो कि आपको मजीद आगे लेवल की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है। तो प्लान डू चेक एक्ट भी, प्लान भी करना है, डू और चेक एक्ट दोनों, ये प्रोसेस है, एक रिसाइकल प्रोसेस है, प्लान डू चेक एक्ट। इसको भी अगर हमारे अगर कोर्स में हुआ तो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया। सिक्स सिग्मा को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, नो डाउट। प्लान डू चेक एक्ट में हमारे पास ये थे, प्लान है, एस्टैब्लिश द प्रोसेस ऑफ अचीव ऑब्जेक्टिव, एस्टैब्लिश द सक्सेस क्राइटेरिया, प्लान रोड मैप टुवर्ड्स द एंड स्टेट। तो प्लान डू चेक एक्ट आ गया आपके पास। फिर आपने डू करना है, डू क्या है, इंप्लीमेंट द रोड मैप एंड इंप्रूवमेंट। तो आपको क्या करना है, लेटर ऑन आपने यही करना है, इंप्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद चेक वेरीफाई एंड वैलिडेट द सक्सेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस, क्या वो सही हुआ जा रहा है, किया जा रहा है काम, आपको चेक करना है। फिर आपने एक्ट करना है। Inappropriate feedback from the implementation, identify improvement areas and improve the process for another round of implementation। तो आपको जो QAQC के लोग होते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपके पास, वो यही चीजें इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपने प्लान करना है, फिर डू चेक एक्ट, यानी इस साइकिल को कंटिन्यू चलाते रह सकते हैं। इसको आपने PDCA साइकिल भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है PDCA साइकिल। PDCA साइकिल ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको यूज करते रहना है, आपको कंप्लीट आपके इंश्योर करते रहना है कि क्वालिटी और इंप्रूवमेंट करते रहना है। प्लान करना है, डू चेक एक्ट, फिर आपने दोबारा प्लान करना है, डू चेक एक्ट करना है। ये आपका ट्रेंड होगा। इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अप्रोच टू सक्सेस, एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब भी यही है कि जो टीम मेंबर, जितनी भी टीम इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सारी रियलाइज कर रही हो कि हमने, उसको पता हो और वो रियलाइज कर रही हो कि हमने हर चीज, जो भी प्रोडक्ट करनी है, जो भी काम, जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो हमने क्वालिटी वाइज कंप्लीट करनी है। और वो रियलाइज कर रहा हो कि हमें क्वालिटी का पता है, किस क्वालिटी, किस ग्रेड और किस क्वालिटी की प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करनी है, और हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट करे। ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर क्वालिटी की, या QA का बंदा, या QC का बंदा, या जो मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वालिटी मैनेजर है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि हर वो टीम मेंबर प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसको कहते हैं। कस्टमर डिटरमाइन डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, प्रोसेस फोकस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट फोकस। ये हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ कंपोनेंट्स जो आपने डिस्कस किए हैं। इसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिसको हम केजन भी कहते हैं, जापानीज वर्ड है। इंक्रीमेंटल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, केजन इज अ जापानीज मैनेजमेंट टर्म फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिक्स सिग्मा, ये हमने थोड़ा सा यहां पर देखना है, जो हमने पहले भी कुछ इसको एक्सप्लेन किया था कि वन सिग्मा क्या होता है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, हमने वहां पर भी स्टडी किया था। इसमें जो हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक्स कैजुअल में देखा था, इसमें भी सिमिलर केस है। यहाँ इसको मैं वेव फॉर्म को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर, यहाँ अगर आप देखें तो थ्री सिग्मा से हम स्टार्ट, मिडल ऑफ दिस वेव फॉर्म अगर हम देखें तो ये मीन हो गया आपके पास। अगर हम इसके वन स्टैंडर्ड में जाते हैं, यानी वन स्टैंडर्ड का मतलब वन स्टैंडर्ड, वन सिग्मा इस साइड पे जाते हैं, वन सिग्मा इस साइड पे, यानी मीन से अगर डेविएट करता है और फिर आप उसको कंट्रोल करके ले आते हैं, आपको इतनी कॉन्फिडेंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कि इतना भी अगर प्रोसेस आपका डेविएट हो जाए तब आप उसको कंट्रोल करके मीन तक लेके आ सकते हैं, आप इतनी क्वालिटी दे सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम 68% आप कॉन्फिडेंस है कि जितना भी डेविएट हो जाए हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी सिग्मा लेवल, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कस्टमर या क्लाइंट या स्पॉन्सर को कि हम 1 सिग्मा की क्वालिटी दे रहे हैं, 2 सिग्मा की क्वालिटी दे रहे हैं, या 3 सिग्मा की क्वालिटी दे रहे हैं प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज पर। तो वो ये कंसीडर कर रहा होगा 68%, 95%, 99% या 99.9%। ये डिपेंड करता है किस टाइप की क्वालिटी रिक्वायर्ड है फ्रॉम द कस्टमर साइड, फ्रॉम द स्पॉन्सर साइड, फ्रॉम द क्लाइंट साइड। तो आपको ये देखना होगा। 1 सिग्मा यानी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पहले कैलकुलेट भी की थी, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने पहले आपको बताया था। हमने जो कैलकुलेट की थी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास माइनस प्लस दोनों साइडें होगी।
प्लस माइनस की बात हम करेंगे। मीन स्टे वन स्टैंडर्ड का मतलब 68% है, और टू स्टैंडर्ड्स का मतलब 95% है। और इसी तरह थ्री सिग्मा या थ्री स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर 99.73 ऑफ द डेटा आर विद इन द थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। दैट्स मीन कि अगर हम मीन से, अगर अब इसको मीन से कंसिडर करें कि हम इतना डेविएट हो जाए, आपकी प्रोडक्ट इतना डेविएट हो जाए कि वो थ्री सिग्मा थ्री स्टैंडर्ड्स तक आ जाए, तब भी आप उसको कंट्रोल करके लेके आ सकते हो, तब आप कहेंगे कि हम थ्री सिग्मा की क्वालिटी दे रहे हैं। इसको मजीद यहां पर मेंशन किया गया है कि मीन से आपने 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा जो भी क्वालिटी देनी है। 6 सिग्मा में 4 आउट ऑफ 1 मिलियन डिफेक्ट रेशियो होती है, यानी आपने अगर 1 मिलियन की प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है, अगर आप 6 सिग्मा की क्वालिटी की इंश्योरेंस दे रहे हैं तो 1 मिलियन में से 4 जो डिफेक्ट्स होंगे वो आएंगे क्वालिटी वाइज। यानी आपने अगर स्केड्यूल बनाया है 1 मिलियन स्केड्यूल बनाया है तो आपका जो डिफेक्ट होगा वो 4 टाइम होगा, यानी 4 स्केड्यूल आपका कंप्लीट, यानी उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। बाकी सारे जितने भी आपने स्केड्यूल बनाए, कास्ट बनाई है या क्वालिटी की प्रोडक्ट दी है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट दी है कि आपने 99.9 कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हैं आपसे, और सिर्फ 1 मिलियन में आउट ऑफ 1 मिलियन से 4 कस्टमर जो है वो आपसे डिसएग्री करते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट की है। इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर 1 मिलियन कस्टमर डील करती है, क्लाइंट डील करती है, उसमें से 4 अनहैप्पी हैं, बाकी सारे के सारे हैप्पी हैं आपकी रिक्वायरमेंट से जो उन्होंने आपने कंप्लीट करके दिए कस्टमर को। इसको हम कहते हैं 6 सिग्मा की क्वालिटी। ट्रेंड हमने पहले पढ़ लिया जिसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हम देखेंगे, और म्यूचुअल बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग बिटवीन पार्टनर्स सप्लायर्स शुड फोकस ऑन विन विन सिचुएशन। तो आप ये देखते हैं कि म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं वो है। टेलरिंग हम क्या करते हैं, बेसिकली देखते हैं कि पॉलिसी कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग, यानी हमने वो देखना है कि टूल्स एंड क्वालिटीज कौन कौन से इस्तेमाल करनी है, टेक्निक्स कौन कौन से इस्तेमाल, ऑडिटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कब कब हम ऑडिट करेंगे, कब कब हम इंस्पेक्शंस करेंगे, मेथड्स कौन कौन से होंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कौन से स्टैंडर्ड्स आप यूज कर रहे हैं। बाज दफा क्वालिटी में क्लाइंट या कस्टमर कहता है हम आईएसओ स्टैंडर्ड, आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड यूज करेंगे। बाज दफा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, रेगुलेशंस है कि लीगल आपको कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपने आईएसओ को नहीं यूज करना, IEEE को यूज करना है। तो जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आईएसओ उसको रेफर नहीं करती, फलां के स्टैंडर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। तो क्वालिटी आपने उस हिसाब से देनी है, जो स्टैंडर्ड कस्टमर या क्लाइंट रिक्वायर्ड करे तो आपने वही देनी है। तो आप इसका मतलब डिसाइड नहीं करने वाले, कस्टमर या क्लाइंट डिसाइड करने वाला है किस स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है। टूल्स एंड टेक्निक पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो केजन हमने यूज किया, या प्लान डू चेक एक्ट हमने किया है, PDCA साइकिल, एंगेजिंग द स्टेक होल्डर्स इन द क्वालिटी प्रोसेस टू इंप्रूव क्वालिटी। स्टेक होल्डर को एंगेजमेंट भी करना है ताकि आप फीडबैक लेते हुए आप उनको इंप्रूव भी कर सकें। तो यहां पर एक पॉइंट जो यहां से आया हमारे पास, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको, इसको मजीद समझ लें कि आपके इंडस्ट्री के वाइज जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी कि आपने फलां स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। अब उन्होंने कह दिया आपको कि आपने आईएसओ का स्टैंडर्ड यूज करना है, आपने क्या करना है कि IEEE IEC जो भी स्टैंडर्ड्स वो दे, स्टैंडर्ड्स चेंज हो सकते हैं क्वालिटी बेस, कि आपने इस स्टैंडर्ड की क्वालिटी हमें देनी है, इस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए आपने हम वो चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो स्टैंडर्ड होगा हमने जो अप्लाई करना है वो हम करेंगे। तो आई थिंक एजाइल को हम करके उसके बाद हम क्लोज अप करेंगे टुडे के लिए। एजाइल जो होगा उसमें प्लान स्प्रिंट करेंगे हम, उसकी क्वालिटी हम डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट स्प्रिंट की नेक्स्ट होगी, ये मेन कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंट, डिप्लॉय, क्लोज स्प्रिंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हम करेंगे, और हम देखेंगे क्लाइंट को इन्वॉल्व करके उससे फीडबैक लेने के बाद हम यूज करेंगे। उसके बाद सजेशंस होंगी, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड है,
व्हाट वेंट वेल है, क्या चीज रॉन्ग हुई है और कौन सी चीज सही हुई है। एक्शन आइटम्स फॉर नेक्स्ट स्प्रिंट, तो हम एक स्प्रिंट के प्लानिंग करेंगे, उसकी उसकी हम क्वालिटी देखेंगे, नेक्स्ट स्प्रिंट की हम मजीद देखेंगे कि वो इंप्रूवमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो जब हमारे पास फर्स्ट स्प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है क्वालिटी की, तो हम नेक्स्ट स्प्रिंट में इंप्रूव करके एक्शन लेके हम नेक्स्ट स्प्रिंट में जाएंगे। तो ये कुछ कंसिडरेशन थी क्वालिटी मैनेजमेंट की। नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली जो क्वालिटी मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक के लिए काफी आई थिंक। कोई क्वेश्चन हो यहां तक कोई आप रेज कर सकते हैं, हम ताकि इसको आज के क्लोज करें, आज की क्लोजिंग कर लेंगे। सर सिक्स सिग्मा में येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट जो बोलते हैं वो क्या जो सर्टिफिकेशन में उसमें क्या? जी बिल्कुल, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली जो सबसे पहला इसके अंदर जो बेल्ट होता है वो है वाइट बेल्ट। सबसे पहला जो वाइट बेल्ट है उसके अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, जो हम इस पीएमपी में भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद है येलो बेल्ट, वो भी कवरेज आ जाएगी आपकी, पीएमपी में कवरेज हो जाएगी, यानी जो आप अभी कोर्स में स्टडी करने वाले हैं ये आप कवरेज दे देंगे। इसके बाद जो तीसरा बेल्ट होता है वो ग्रीन बेल्ट होता है, वो इसमें उसमें कवरेज नहीं है, क्योंकि जो ग्रीन बेल्ट है उसका जो प्रोसेस है वो है पीडीसीए और सिक्स सिग्मा केजन, और उसके अंदर जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है और दो तीन प्रोसेसेस और हैं जो प्रोसेस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस है, तो उनको स्टडी करना पड़ता है, उसके अंदर कोर्स में इंक्लूडेड है। तो क्वालिटी को बेटर करने के लिए, यानी सिक्स सिग्मा की क्वालिटी देने के लिए आपको एक्सपर्टीज जरूरत होती है, जो कि ग्रीन बेल्ट में मौजूद है। ग्रीन बेल्ट के बाद एक और बेल्ट होता है जिसको ब्लैक बेल्ट कहते हैं, वो इन केजन और जो लीन की मेथोडोलॉजीज हैं, लीन और केजन की, उसमें आपको मजीद एक्सपर्टीज दे देते हैं, और वो ब्लैक बेल्ट में होता है। उसमें आपको ये बताते हैं कि हमने जो फर्स्ट यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड एविएशन यानी फर्स्ट सिग्मा जो 1 सिग्मा है, उससे इंप्रूव क्वालिटी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और 6 सिग्मा तक आप कैसे इंप्रूव कर सकती हैं। लीन और केजन में आपको ये मेथोडोलॉजी बताई जाती है, ग्रीन बेल्ट में भी और ब्लैक बेल्ट में भी, ताकि आप सर लीन और केजन तो यही बोलता है कि आप कॉस्ट और कॉस्ट को रिड्यूस करना है। बेसिकली दोनों जो चीजें हैं ना वो है कि विद रिस्पेक्टिव टू, यानी इंप्रूवमेंट लानी है किसी भी फैक्टर में। ये जरूरी नहीं है सिर्फ कास्ट की बात करें, नहीं सिर्फ कास्ट की बात नहीं, विद इन द रिसोर्स आप देखें ना, एंड रिड्यूस द बेस्ट। आप देखें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो आपका है भी, जो इंप्रूवमेंट है आपकी ना, वो किसी भी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट देनी है। दोनों का मकसद यही है, क्वालिटी में मेन मकसद भी यही है। आपने क्या करना है, इंप्रूवमेंट लानी है डेली बेसिस पे। आपने लेट से, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप डेली एक कंप्यूटर पे एक्टिविटी करते हैं, आप टाइपिंग करते हैं, लेट से हम टाइपिंग करते हैं, एक पेज आपने टाइप किया है और आपने मिस्टेक्स की हैं, पहले पेज में 5 मिनट्स में पेज आपने किया है, लेकिन उसमें मिस्टेक कितनी है, 10 मिस्टेक्स हैं एक पेज में, आपकी क्वालिटी 0 हो गई। आपने नेक्स्ट डे फिर प्रैक्टिस की और आपने क्या किया, इंप्रूव किया, 2 मिस्टेक कम हो गई, 8 मिस्टेक्स हैं, आपने सेम 5 मिनट लगाए हैं और आपकी 2 मिस्टेक्स हुई हैं सिर्फ। थर्ड डे आपने क्या किया, आपने मजीद इंप्रूव किया, आपने देखा कि मैं ये मिस्टेक क्यों कर रहा हूं, मजीद आपने क्या किया, 2 मिस्टेक्स और कम कर ली थर्ड डे में। फोर्थ डे में आपने मजीद इंप्रूवमेंट की। तो एक दिन आएगा आपकी प्रैक्टिस की वजह से, इंप्रूवमेंट की वजह से, अगर आपने इंप्रूव किया है, आपने देखा है कि मैंने मिस्टेक्स क्या की, एक दिन आएगा कि आपका 1 पेज कंप्लीट भी होगा टाइपिंग का और आपकी मिस्टेक भी कोई भी नहीं होगी। यही क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि आपको डेली बेसिस पर आपने प्रोसेस को फोकस करना है। वो कास्ट में भी हो सकता है, वो स्केजुअल में भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट की एक्टिविटी किसी और में भी हो सकता है, वो रिसोर्स में भी हो सकता है। मैं रिसोर्स की बात करता हूं आपके साथ कि आपने हायरिंग की, आपने प्रोसेस, हायरिंग का प्रोसेस जो आपने यूज किया है, आप एक दफा ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज पे परफॉर्म करने के लिए हायर किया, मैन पावर हायर की,
2 बंदे हायर किए, वो आपके फेलियर निकले, आपका प्रोसेस सही नहीं था, आपने फिर उसको हायरिंग का उनको फायर किया, आपने नेक्स्ट प्रोसेस किया, अभी हमने क्या मिस्टेक्स की थी, हायरिंग के प्रोसेस को इंप्रूव किया, ये क्वालिटी है। आपने डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं अपने अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उसके अंदर डेली बेसिस पे आपकी मिस्टेक्स हैं, आपने देखना है कि मैं कहां मिस्टेक्स कर रहा हूं, ये क्यों वजह से क्या क्या तो प्रोसेस इंप्रूव करेंगे आप। यही क्वालिटी की जो अप्रोच है होनी चाहिए, वो लीन और केजन ये सारी हैं, इसके अंदर सारी मेंशन है, वो चाहे ब्लैक बेल्ट कर लें आप, मास्टर ब्लैक बेल्ट कर लें, मेन चीज है कि आपके अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अपने प्रोसेस को इंप्रूव करें। क्लियर सर? ये एग्जांपल जो अभी आपने दिया है, ये एग्जांपल लीन पे भी सेट हो रहा है ना? बिल्कुल सेट हो रहा है, बिल्कुल सेट हो रहा है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। लीन का मकसद भी यही है, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, और वही चीज है। मैं तो वही बोला, रिड्यूस द वेस्ट एंड ऑप्टिमाइज द। मैं इस चीज को आसान कर दिया, इस वजह से आसान किया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप जो डेली वेस्ट कर रहे हैं या डेली जो इंप्रूव कैसे करना है। केजन का भी यही हाल है और लीन का भी यही है, यानी आपने वेस्ट को कंप्लीट ऐसा ऐसा कम करते जाना है, और एक आपकी स्टेज आएगी जिसमें आप कंप्लीट प्योरीफाई हो जाएंगे। तो जो ये सर्टिफिकेशन है, इसमें 2 किस्म की सर्टिफिकेशन है। जो क्वालिटी की सर्टिफिकेशन है उसमें एक सिर्फ खाली 6 सिग्मा है और एक है लीन 6 सिग्मा, तो दोनों में फर्क है। यानी 6 सिग्मा की क्वालिटी तो आप दे रहे हैं, प्लस आप वेस्ट को भी रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है। तो अगर पीएमपी के बाद अगर कोई क्वालिटी की तरफ जाना चाहता है या उसके पास कोई और यानी इस फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको जरूर जो है वो क्वालिटी की सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, जिसके अंदर लीन 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है या येलो बेल्ट है, वो करना चाहिए। उसकी डिफरेंट सर्टिफिकेशन, उसका एग्जाम है, सिमिलर केस ऑनलाइन एग्जाम्स हैं वो जो, और होपफुली मैं आपको एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द ट्रेनिंग में आपको कुछ सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरी फील्ड भी है ये क्वालिटी की, तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूंगा कैसे आपने इनको एक्सेस करना है और कैसे करना है। नो प्रॉब्लम। क्लियर? टुडे क्लियर? तो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वालिटी को मजीद देखेंगे कि किस तरह से हम क्यूए को प्रोसेस करते हैं, और नेक्स्ट हम बाद में फिर क्यूसी को देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ क्यूए को देखेंगे। गुड नाइट फॉर गाइस टुडे। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू टू। यस राकेश जी, नेक्स्ट लेक्चर का कल क्या है? थर्सडे है। यस। तो आपका पेंडिंग वर्क कितना है, और ताकि आप कितना, ये अच्छा सवाल राकेश ने किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। फ्राइडे का आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? नहीं सर, फ्राइडे को नहीं। क्या कहते हैं? यूसुफ छुट्टी पे गया हुआ है। सैटरडे को एक क्लास ऑलरेडी है 9 o'clock पे। तो या तो टाइमिंग चेंज करें, क्योंकि जो स्केड्यूल सेकंड क्लास दूसरे ग्रुप का है वो ऑलरेडी कल आ रहा है उसका स्केड्यूल, तो फिर उसका जो टर्न है वो सैटरडे को आएगी। उनकी बीच में फ्राइडे को जो हॉलीडे है, तो उसमें फिर आपको ये है कि 3 दिन मिल सकते हैं। 3 दिन में आपको जो जितनी आपकी पेंडिंग एक्टिविटीज हैं वो आप परफॉर्म कर दें तो बेहतर होगा। कुछ कैलकुलेशंस हैं आपकी, कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आप क्वेश्चन एज मच एज दे दीजिए। संडे को से ही रखते हैं। संडे को फिर आपको मैं क्लास दे सकता हूँ। अगर फ्राइडे ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर संडे को फिर क्लास ले लें। मुश्किल है फ्राइडे को। संडे बेटर है सर। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। संडे को हम रख लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन में कुछ दूं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, जैसे राकेश उसने सॉल्व नहीं किया नेटवर्क डायग्राम को, यूसुफ थोड़ा बिजी है, उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, और सत्या ने भी कोशिश की है कि इसको मजीद इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है। मैं कुछ क्वालिटी के क्वेश्चन दूंगा, कुछ कास्ट के क्वेश्चन दूंगा। अभी कास्ट थोड़ा सा मजीद बढ़ गया है, बजट वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे।
हमको स्केड्यूलिंग और कॉस्ट का थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। यही मेन कॉन्सेप्ट है और जो हमने क्लियर कर चुके हैं। इतना आपको ये वो आपको जो ठीक है। कम समझ आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे, आपने लेक्चर रिपीट नहीं किया, आपने स्लाइड्स रिपीट नहीं की, आप मुझसे लेक्चर लेके जा रहे हैं वो उसी पे सिर्फ रह रहे हैं अभी। इसका ये मतलब होता है जो आप मुझसे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं आप, ये 50% आपको समझ आ रहा है। विजुअलाइजेशन के साथ आपको 50% समझ आ रहा है। 50% आप क्लियर तब कर सकते हैं जब आप रिपीट करेंगे लेक्चर और आप स्लाइड भी रिपीट करेंगे, तब आपको 50% क्लियर आने के बाद 100% हो जाएगा। ओके। आपको टाइम थोड़ा Very good, निकालना है। अब जैसे 3 डेज आपके पास आ रहे, कमिंग 3 डेज। नहीं, जी। ये मैटर ऑफ अप टू नेक्स्ट वीक है, इसके बाद से मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा। टाइम मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे जब आप रिपीट करेंगे। आप देखें, मैं राकेश को जो है अप्रिशिएट करता हूं। अगर वो आल दो के वो सिर्फ सुन रहा है, लेक्चर सुन रहा है, सिर्फ वो क्लियर कर रहा है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। जब आप रिपीट करेंगे यहां से जाने के बाद, आप में से लेक्चर लिया, आपने रिपीट नहीं किया तो आपको क्लियर नहीं होगा, कभी भी क्लियर नहीं होगा जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है सर, मैं समझ ओके गया। ओके, सी यू गाइस ऑन संडे। गुड नाइट and have a nice weekend as well. Have a nice weekend to you. Same. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Good night. Good night.